Dear children, here I am back with my new video series of Chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife. Before we start the video, you have to promise me that you are going to watch it completely, all the videos on Chapter 5, so that you have a very strong foundation for class 10th. ओके बेटा पूरा देखेंगे विद अंडरस्टैंडिंग विद कंसंट्रेशन you will able to comprehend each and every questions. Okay, so let's begin. Natural vegetation and wildlife. India is a country of diverse relief, diverse climate, and that is why we have diverse vegetation, and due to diverse vegetation we have rich wildlife. The meaning of the chapter is natural vegetation and the wildlife. What is the word natural vegetation means? Vegetation is whatever grows on the earth is vegetation, from small herb to shrub to huge banyan trees, creepers, climbers, everything comes under vegetation. But what is natural vegetation? Natural vegetation means the vegetation which grows on its own, जिसको आप जाकर पानी नहीं डालते हैं. रोड के साइड में जो पेड़ होते हैं, कौन उनको लुक आफ्टर करता है, कौन उनके वीड्स निकालता है, कौन उनको पानी देता है? Nobody. So the vegetation which grows on its own without any human aid, without any human help, is known as natural vegetation. Natural vegetation in real sense is not natural now. मतलब अगर हम किसी रोड को वाइडन करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज नॉर्म्स, अगर हमको पेड़ काटने हैं तो हमको पेड़ लगाने भी हैं. तो हम जब रोड वाइडन करते हैं और दोनों तरफ से पेड़ काटते हुए चलते हैं तो हम उतने पेड़ कहीं और लगाते भी हैं. लेकिन क्या हम उसी वैरायटी का पेड़ लगा रहे हैं, उसी स्पीशीज का पेड़ लगा रहे हैं? 4 पेड़ काटे वहाँ से बड़े बड़े मानो चाहे वो यूकेलिप्टस है, देवदार है, कोई पेड़ हमने काटे, हमने 4 पेड़ लगा दिए मैंगोज के, 4 लगा दिए लीची के. हमने काउंटिंग में तो हमने पेड़ लगाए, बट इट इज़ रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी कम हो रही है, स्पीशीज ऑफ ट्रीज कम हो रहे हैं. सो नेचुरल वेजिटेशन रियल सेंस में नेचुरल कहाँ रह गई है? जहाँ ह्यूमन बीइंग नहीं पहुँच पाया है. The area which is not accessible for human being is natural in the real sense. हिमालयाज की वो जंगल जहाँ अभी थोड़ी पहुँच कठिन है वो नेचुरल है. ठीक है, असम के वो डेंस फॉरेस्ट जहाँ अभी हमारी पहुँच थोड़ी बहुत मुश्किल है वो बिल्कुल नेचुरल है इन इट्स रियल सेंस. सो द नेचुरल वेजिटेशन की सिंपल एक डेफिनेशन याद करेंगे. द वेजिटेशन विच इज नेचुरल, which grows on its own without any human help, is known as natural vegetation. Endemic and exotic. The vegetation which is purely Indian, which is found in India, which is in India, purely Indian, is called endemic to India. This species is endemic to India means it is grown, it is found in India, then it spreads some other countries. Just opposite of it is exotic. Exotic means the species which have come from other countries to India. जैसे यूरोपियंस आए थे, चाय का पौधा लेकर आए थे, तो टी इज exotic species. So I hope you understood the difference between endemic and exotic. So India is a country of diverse flora and fauna. What is the reason behind it? Why we have so rich flora and fauna? You know, India has 47,000 species of plants. अगर मैं आपको बोलूँ ये लो कॉपी और लिखना शुरू करो जितने आपको प्लांट्स के नाम आते हैं, जितनी वेजिटेबल, जितनी दालें, 100, 200, 300 के बाद आप रुक जाएंगे. सारी सब्जियां लिख दो,
सारी दालों के नाम लिख दो, सारे प्लांट्स ट्रीज सबके नाम लिख दो, फिर भी आप, लेकिन 47,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन इंडिया, and this makes India one of the 12 mega biodiverse countries in the world. इंडिया को ये 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं. मेगा मीन्स जहाँ पर प्लांट्स की बहुत डाइवर्सिटीज है. वी हैव मोर देन 47,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. So India, it is a matter of proud for India that India is one of the 12 mega biodiverse countries in the world. Okay, so let's see what are the factors which are responsible for its diversity. 47,000 species, out of which 15,000 are flowering plants and the rest of them are non-flowering like algae, fungi, etc. So what are the factors for this huge diversity of plants in India? The two big factors are relief and climate. Relief. Relief means topography, the landform. And relief we again we will divide into land and soil. So let's begin with land. India is a land of diverse relief. We have read this in our previous, I think in second chapter, that India has 6 physiographic divisions. And जो 6 हमारे जो divisions हैं, mountains, plains, plateaus, coastal areas, island groups, desert, क्या आप सोचते हैं कि इन सब जगह पर एक जैसी ही वेजिटेशन होगी? माउंटेन्स की वेजिटेशन क्या डेजर्ट की तरह हो सकती है, या डेजर्ट की वेजिटेशन कोस्टल एरिया या प्लेन्स जैसी हो सकती है? सो व्हेन इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंड, डाइवर्स टोपोग्राफी, डाइवर्स रिलीफ, so it is very natural that we have diversity because of diverse फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट इन इंडिया. सो हम इसमें केवल 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा. द वेजिटेशन ऑफ माउंटेन्स इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट्स और कोस्टल एरियाज. सिंपल. सेकेंड इज सॉइल. There are variety of soil found in India. From alluvial soil to sandy soil to black soil, variety of soils in India, and all these soils support different type of vegetation. Sandy soil, for example, sandy soil have cactuses, bushes, babool, acacia trees, which have thorns. This vegetation is confined to desert areas. Now you think about the vegetation of coastal areas. Coastal areas में क्या है? Mangrove forests, which can survive in both salty fresh water. Mangrove forests. Similarly, the dense forest of Assam, very dense, huge trees, totally different from the western part of India, which is under the cover of sand, cactus and cacti, etc. Okay, so you can give 2 examples of coastal areas or desert areas. That is why we have diverse flora and fauna. Second side is climate. Climate is the main features which is responsible for diversity in flora and fauna. Climate जैसा होगा. Can you imagine the climate of equatorial region? Equatorial, जहाँ बहुत गर्मी, बहुत बारिश होती है. The climate of this area is responsible for dense equatorial tropical rain forest on the equator. और इसी से आप ऊपर चले जाओ आर्कटिक एरियाज में या टेम्परेट बेल्ट में, the vegetation is totally different. Arctic is the region almost without vegetation because the climate is not suitable for growing vegetation there. Okay, so let's divide climate into 3 subheads: temperature, photoperiod and precipitation.
टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको इतना तो बेटा मालूम ही होगा कि इंडिया में भी हम 2 क्रॉप लगाते हैं साल में। कहते हैं एक गर्मियों की क्रॉप, एक सर्दियों की क्रॉप। आम भाषा में, इन अ लेमैन लैंग्वेज, एक गर्मियों में ये लगती है, सर्दियों में ये लगती है। गर्मियों में राइस लगता है, सर्दियों में व्हीट लगता है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि गर्मी मतलब टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर चेंजेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस। आप माउंटेन से ऊपर की तरफ चलते हैं, हम माउंटेन के फुट हिल्स में हैं, फुट में हैं, high temperature and more rainfall. We can see a belt of vegetation, very dense forest here because temperature and rainfall both is high here. लेकिन जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं, we know as the height increases, temperature decreases. This is very simple. ऊपर जाते हैं तभी तो हिल स्टेशंस का नाम हिल स्टेशंस है, वो कोल्ड है। ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने से टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस। कहाँ वो बड़े बड़े फैले हुए पेड़ ऊपर जाते 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 कोनिकल पेड़ बनते जाते हैं। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द माउंटेनियस वेजिटेशन। आप केवल एक पहाड़ की वेजिटेशन देख लो, आपको सब वहाँ से पता, बेल्ट्स दिखाई देंगे विच वी विल टेक इन दिस लेसन। ऐसे बेल्ट्स दिखाई देती है। द वेजिटेशन चेंजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। ओके, सो इंडिया में तो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालयाज हैं, दूसरी तरफ विंध्यास, सतपुरास, अरावलीज, हर जगह वेस्टर्न घाट्स। सो एज द हाइट इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड वेजिटेशन चेंजेस। ओके, हाइट का तो एक एरिया हो गया, लेकिन क्लाइमेट में हम अपने में भी तो देखते हैं कि इतने महीने गर्मियों के हैं, इतने महीने सर्दियों के हैं। तो जैसे टेम्परेचर चेंज होता है ऐसे ही टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज होती है। तो टेम्परेचर इज वन ऑफ द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन टाइप ऑफ वेजिटेशन। ओके, सेकेंड इज फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा? ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। वहाँ सनलाइट कितने समय तक मिलती है? सनलाइट, इफ इट इज इक्वेटोरियल एरिया, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की सनलाइट, तो द प्लांट्स ग्रो वेरी फास्ट, लग्जरियंटली, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन जैसे 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 आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, द अमाउंट ऑफ सनलाइट डिक्रीजेस, सनलाइट कम होती जाती है, और सनलाइट इफेक्ट्स द density of vegetation and the growth of vegetation. ओके, इसको आप बेटा अपने आप से ऑब्जर्व करो। जब मॉनसून्स आते हैं इंडिया में, बारिशें आती हैं। बारिश कब आती है इंडिया में? जून, जुलाई, अगस्त एंड फ्यू डेज ऑफ सितंबर। इन दिनों पे गर्मी होती है, बारिश होती है, और गर्मी और बारिश यही तो 2 चीज़ हैं जो हमको मीन्स प्लांट्स को चाहिए। गर्मियों में लॉन्ग फोटो पीरियड होता है, सुबह धूप जल्दी निकलती है और शाम कम से कम 7 o'clock तक सनसेट नहीं होता। जितनी लंबी ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट उतनी ही फास्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स उतनी तेजी से बढ़ते हैं। मॉनसून में देखो, आज घास कटाई, हफ्ते बाद फिर घास हो जाती है, फिर घास हो जाती है। प्लांट्स को, फ्लोरा को क्या चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं, बेटा आपको अपनी लाइफ लग्जरियस करनी है, ऐशो आराम से रहना, क्या चाहिए? लिस्ट बनाओ। आप कहोगे बड़ा सा घर हो, बड़ा सा फ्रिज हो, उसमें खूब सारी चीज़ें भरी हों, बर्गर्स हों, सैंडविचेस हों, ये पिज़्ज़ा हो, वट एवर यू वॉन्ट, आपकी लाइफ लग्जूरियस हो गई। प्लांट्स को पूछो व्हाट डू यू वांट फॉर अ लग्जूरियंट ग्रोथ, वो कहते केवल 2, हाई टेम्परेचर एंड द थर्ड फैक्टर हाई प्रेसिपिटेशन। अगर बारिश ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होगी तो फोटो पीरियड भी बड़ा हो जाएगा, वही बड़ा हो गया, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। दे ग्रो वेरी फास्ट इन द रेनी सीजन बिकॉज दे गेट all these 3 factors of climate in the rainy season: long photo period, high temperature and precipitation. Here I want to tell you what is precipitation. ज़्यादातर बच्चों को एक इस तरह का दिमाग में सेटअप होता है कि precipitation means rainfall.
Precipitation means rainfall. Precipitation does not mean rainfall. Rainfall is one type of precipitation. Precipitation में सब कुछ आता है बेटा. क्या क्या? रेनफॉल भी आती है, हल्की वाली बारिश ड्रिजल भी आती है, हेल स्टॉर्म ओला गिरता है वो भी प्रेसिपिटेशन है, स्नोफॉल वो भी प्रेसिपिटेशन है. अगर प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के फॉर्म में है पहाड़ों में तो वहाँ की वेजिटेशन बिल्कुल अलग है. हमारे पास तो ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ स्नोफॉल होता है, तो वहाँ की वेजिटेशन क्यों अलग है? बिकॉज द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज डिफरेंट. Type of precipitation is also different and amount of precipitation is also different. Amount means quantity. Rainfall में है, ज़्यादा rainfall है तो it is under the dense vegetation. As the rainfall reduces, type of vegetation also changes. चलो अपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओ. ईस्ट क्या है हमारा? असम. हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, लॉन्ग फोटो पीरियड, खूब डेंस वेजिटेशन, घने जंगल. धीरे 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 वेस्ट की तरफ आओ, सेंटर में आए और आखिरी में जब आप वेस्ट में पहुंचे तो आपको क्या देखा? रेनफॉल डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और यहाँ कहाँ पहुंच गए हम? डेजर्ट में. रेनफॉल भी कम है, ठीक है, रेनफॉल ही कम है वहाँ पर. टेम्परेचर तो वहाँ भी हाई है, फोटो पीरियड तो वहाँ भी लॉन्ग है, लेकिन केवल रेनफॉल कम होने के कारण द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अंडर द डेजर्ट. सो ये तीनों फैक्टर जब एक साथ होंगे तभी रिच फ्लोरा एंड फौना मिलेगा. सो व्हाट आर द फैक्टर्स? ये सब चीज़ें इंडिया में अवेलेबल है. वी हैव डाइवर्स रिलीफ, डाइवर्स लैंड, डाइवर्स सॉइल टाइप which results in rich flora. We have climate of all the types. We have hot climate of equator near the equatorial area, that is Kerala, Tamil Nadu, etc. हमारे पास cold climate है J&K में. हमारे पास very rainy areas, equatorial area types we have in the Assam. So due to these all factors, India has huge diversity in flora and fauna. So I hope you have understood that what are the factors which are responsible for diversity of flora and fauna in India. Okay children, now our next topic is importance of forest. Forest को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? कुछ तो कारण होगा. What is their role in our life? पेड़ लगाओ, वन महोत्सव मनाओ, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये पेड़ लगाने से ही होता है. व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस? फॉरेस्ट के कुछ डायरेक्ट यूजेस हैं और कुछ इनडायरेक्ट यूजेस हैं. डायरेक्ट तो हमें हमेशा पता है, फॉरेस्ट हमको रॉ मटेरियल देते हैं टू वेरियस इंडस्ट्रीज. इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं विच आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज. देर आर मेनी इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल विच वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. सेकेंड इज लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज. देर आर मेनी कम्युनिटीज, छोटी छोटी जो हमारे गांव हैं जो इन फॉरेस्ट के पास है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए इन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है. फायरवुड लेकर आते हैं, अपने जानवरों को वहाँ चराने लेके जाते हैं, हनी कलेक्शन करने के लिए वहाँ पर उनकी साइट्स होती हैं. तो इट इज़ डायरेक्टली, फॉरेस्ट इज़ डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट फॉर देम. साइट्स फॉर रिक्रिएशन, एडवेंचर करने के लिए हम पहाड़ों में जाते हैं, उसकी नेचुरल सीनिक ब्यूटी को देखने के लिए हम पहाड़ों में जाते हैं. मतलब ये रिक्रिएशन के लिए, ठीक है, अपने को थोड़ा चेंज लाने के लिए भी वी गो एंड वॉक ऑन द माउंटेन्स, फॉरेस्ट देखने, मतलब एक रिक्रिएशन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी हम फॉरेस्ट में जाते हैं. एड्स ह्यूमस टू सॉइल. जितने फॉरेस्ट में पत्ते गिरते हैं, एक ऑटम सीजन पतझड़ आता है और कितनी सारी वहाँ वाइल्ड लाइफ रहती है. जब उनके मरने के बाद उनकी बॉडी डीके होती है, एवरीथिंग, डेड लीव्स, डेड प्लांट्स गेट्स एडेड इनटू द सॉइल. इट इंक्रीजेस द ह्यूमस एंड फर्टिलिटी कंटेंट ऑफ द सॉइल.
शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ, ये पूरे वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है। सारे जो जंगली जानवर हैं दे लिव इन फॉरेस्ट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो these are direct importance of forest. Now what is the role of forest indirectly? Indirectly it improves the quality of environment. जो जहाँ पर भी पेड़ ज़्यादा होंगे, आप हमेशा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, किसी जगह से आप जा रहे हैं, किसी मार्केट के बीच में से अचानक से आप अपने घरों की तरफ जहाँ पर पेड़ ज़्यादा है तो देयर इज़ फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हमको भी महसूस होता है. The area which have more trees will have more oxygen. It improves the quality of environment. वहाँ टेम्परेचर कम होगा, वहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, मतलब कंप्लीट एनवायरनमेंट गेट्स इम्प्रूव्ड, एनहांस्ड बाय द ट्रीज और द फॉरेस्ट्स. इट कंट्रोल्स सॉइल इरोजन. फॉरेस्ट क्या करते हैं, उनकी जो रूट होती हैं, पेड़ों की जो रूट होती हैं, दे बाइंड द सॉइल. और तेज बहता हुआ पानी आएगा तो इट डज नॉट अलाउ सॉइल टू बी कैरिड अवे बाय वाटर. तभी तो कहते हैं कि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन है वहाँ पेड़ लगा दो, वहाँ पर घास लगा दो, किसी भी तरह की वेजिटेशन लगा दो. तो वेजिटेशन क्या करती है, उनकी जो रूट जो होती है इट होल्ड्स द सॉइल एंड thus it helps in controlling soil erosion. Next, it controls wind force and temperature. हमने पढ़ा था पहले लेसन में इन सेकेंड चैप्टर कि अगर हमको सॉइल को प्रोटेक्ट करनी है इन द डेजर्ट एरिया स्पेशली, ग्रो अ लाइन ऑफ ट्रीज. लाइन ऑफ ट्रीज मीन्स अ रो ऑफ ट्रीज, शेल्टर बेल्ट्स. एक लाइन ट्री की लगा दो विच विल ब्रेक द फ्लो ऑफ विंड. और जब विंड लेकर जाती है अपने साथ सैंड को, सैंड पिकअप, विंड पिकअप्स द सैंड और अपने साथ लेके जा रही है, इरोड कर रही है. अगर वहाँ एक लाइन से पेड़ दिखाई दे जाएंगे तो वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी. स्पीड कम होते ही वो अपनी जितना भी इसके पास सैंड वगैरह है उसको वहीं छोड़ देती है. सो ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन बाय breaking the flow of wind. It causes rainfall. एक आम सी भाषा है, बड़े लोग बोलते हैं जो पेड़ ज़्यादा लगाओ बारिश होगी, पेड़ ज़्यादा लगाओ बारिश होगी. पेड़ ज़्यादा लगाओ से बारिश क्यों होती है? क्योंकि पेड़ों में जो लीव्स होती है उनका काम फोटोसिंथेसिस तो है ही, और उसे हम किचन ऑफ प्लांट तो बोलते ही हैं, वो खाना बनाते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा रोल भी है. आपने साइंस में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि लीव्स करती हैं. लीव्स का एक और काम है. क्या काम है? लीव्स में जो छोटे 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 पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो एक्सेसिव वाटर को वो एस्केप करती हैं. भाई पेड़, अगर मॉनसून का सीजन है, खूब बारिश आ रही है, खूब बारिश आ रही है, खूब बारिश आ रही है, पेड़ बेचारा बोल तो सकता नहीं कि बहुत हो गया पानी अब मुझे नहीं चाहिए. तो वो क्या करता है, अपनी लीव्स में से जो एक्सेसिव वाटर है उसको बाहर निकालता है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन मीन्स एस्केप ऑफ एक्सेसिव वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स. तो जितना वाटर वेपर बढ़ेगा उतना ही कंडेंसेशन होगा और उतना ही रेनफॉल होगी. तो ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग रेनफॉल इन एन एरिया. Okay, so I hope you understood what are the direct and what are the indirect advantages of forests in our life. Okay, now beta our next topic is ecosystem. What is this word ecosystem? बहुत सुना हुआ word होगा आपने. Ecosystem is getting disturbed. We have to protect our ecosystem. ये ecosystem है क्या? इकोसिस्टम को अच्छे से समझ लो बेटा, क्योंकि ये बहुत बार आपको कहीं पर भी ये न्यूज़पेपर्स में, कभी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन में ये वर्ड आपको मिलेगा. इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. इसको इस तरह से समझिए. देयर आर 3 लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ: प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स.
इंटर रिलेशनशिप में प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, एनिमल्स डिपेंड ऑन ह्यूमन बींग्स, human being depends on animals, human being depends on plants, plants depends on human beings. So there is interrelationship between plants, animals and human beings, and further they also depend on their physical environment. This is ecosystem. बहुत ध्यान से समझो बेटा इसको. इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट. ये तो बहुत सिंपल है, आप सबको मालूम है हम कैसे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन बींग्स. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स. वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट. हम तीनों अर्थ पे हैं, यहाँ प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं. हम तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं. We are dependent on plants for all our needs, from food to clothing to shelter, and plants are also dependent on us because we water them, we grow them, we look after them. So similarly, animals, we are dependent on animals, animals are also dependent on us. But इन तीनों के इंटरडिपेंडेंसी के साथ साथ हम अपने एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट जहाँ पर हम रहते हैं उसके ऊपर भी हम डिपेंडेंट हैं. वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर फिजिकल एनवायरमेंट. जैसे एग्जाम्पल प्लांट्स का लेते हैं. जैसे ही विंटर्स आती हैं, प्लांट्स शेड देयर लीव्स. वाई डू दे शेड देयर लीव्स? अगर आप बिल्कुल लद्दाख एरिया में, बहुत ठंडे एरिया में चले जाओ, वहाँ पर तो प्लांट्स पूरी तरह से अपनी लीव्स को या तो बहुत छोटा कर देती हैं या बिल्कुल दे शेड देयर लीव्स. उनके ट्रंक या स्टेम के ऊपर एक मोटी सी बार्क आ जाती है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम विंटर्स. वो भाग तो सकते नहीं अपनी जगह से. दे ब्रिंग चेंजेस इन देमसेल्व्स. दे रिड्यूस द साइज ऑफ लीव्स, or sometimes they shed the leaves. They have one more layer of bark so that they can survive in extreme winters. Similarly for animals, animals in the cold areas also have fur on their bodies. When it is more colder, then they grow more fur on their bodies. Okay, and the animals of desert areas do not have any fur on the body. So this is how the plants and animals are behaving to physical environment. Human being, ये तो हमको अच्छे से मालूम है. जैसे ही विंटर आती है हमारे वोलन्स आ जाते हैं, हमें गरम गरम मोमोज और थुप्पा सूप पीने को मन करता है. जैसे ही समर्स आती हैं हम अपने कॉटन क्लोथ्स में आ जाते हैं. देन वी लाइक टू रिलिश आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स. तो जैसा फिजिकल एनवायरनमेंट बोलता है वही प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग करते हैं. इन सब को हम इकोसिस्टम कहते हैं. इन एन इकोसिस्टम, plants, animals and human beings are interdependent, and further they also interact with their physical environment. Is it clear? So what is the definition of ecosystem? In an ecosystem, plants, animals and human beings are interrelated, and further they also interact with their physical environment. Okay, this is ecosystem. There is लार्ज इकोसिस्टम. अब ज़रूरी नहीं है कि इकोसिस्टम एक ही जगह पर होगा. अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें, पूरी जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, पूरी, चाहे वो साउथ अमेरिका से जाए, चाहे वो अफ्रीका से जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से जाए, ये पूरी बेल्ट जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स एक जैसे मिलेंगे. प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम पूरी इक्वेटोरियल बेल्ट में. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वन बायोम. व्हाट इज अ बायोम? बायोम मीन्स a large ecosystem where there is similarity in plants and animals. जैसे इक्वेटोरियल का एग्जाम्पल दिया, ऐसे एक आर्कटिक रीजन का एग्जाम्पल ले लो. आर्कटिक रीजन मतलब जो सबसे ऊपर का है नॉर्थ, या फिर सबसे नीचे का है साउथ, अंटार्कटिक रीजन. यहाँ पर
टेम्परेचर कम है, यहाँ पर बहुत कोल्ड क्लाइमेट है। तो जहाँ जहाँ पर भी आर्कटिक रीजन होगा वहाँ का प्लांट्स और एनिमल्स सेम होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे, चाहे वो रशिया के हों, चाहे वो ग्रीनलैंड के हों, चाहे वो कनाडा के हों। द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल इज सिमिलर इन दिस बिग एरिया। सो दिस बिग एरिया is called one biome. So biome means, how you will define biome? Biome is a ecosystem. It is a ecosystem in which plants and animals of same type are found. For example, equatorial region is one biome. Here the type of plants and animals, whether it is of Africa, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ से इक्वेटर जाती है, वो सारी जो रीजन है वो वन इकोसिस्टम है वह, और उस वन इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे? वन बायोम। ओके, सो बेटा अब हम different type of vegetation we will continue in our next video. I hope in this video you have understood what is natural vegetation, number one, what is endemic and exotic vegetation, next, number three, what are the factors which are affecting the diversity of plants and animals, and then you have read about what is the importance of forest, what is an ecosystem, and what is a biome. बेटा these are two technical words, ecosystem and biome. इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? Okay, now next video we will take the next topics. Thank you so much. Have a nice day.